and welcome to Artilab, South Asia's first independent visual culture podcast with me, Kamaini. Today, we have with us artist Arshi Irshad Ahmadzai. Her solo exhibition, Naguftaha-e-Hawa, is on view at the Mumbai Gallery, Chatterjee and Lal, till the 27th of April. In this series, Arshi has rendered the unspoken words of Hawa, that's what the title translates to in English, onto cloth and papier-mâché through the mode of abstraction. In many ways, these works reflect the social and political turmoil that India and the world are experiencing at the moment. The word Naguftaha, meaning unspoken, brings to mind the famous couplet by the Urdu poet Mir Taqi Mir. Rahi Nagufta mere dil mein dastan meri, na us dayar mein samjha koi zaba meri. My tale lay unspoken in my heart, none in that land understood my tongue. But perhaps visual art offers a way for silence to retain its potency outside of language. These and other matters on today's Artilab with Arshi Ahmadzai. Let me introduce you to her. Arshi won the 2019 INLAG's Fine Art Award, and in 2020, her project Lihaf was part of the series 5 Million Incidents, organized by the Goethe Institute in collaboration with the Raqs Media Collective. Her first solo show, called Nafas, opened at New Delhi's Blueprint 12 Gallery in 2021. So I first saw Arshi's work in 2019 at the India Art Fair, and then in 2020 when her series Blood Book was part of the exhibition Seeds Are Being Sown at New Delhi's Shrine Empire Gallery. Since her latest show is online as well, on the In Touch platform, I thought this was a good occasion to have an Artilab with her. These particular works, the Naguftaha-e-Hawa series, is in some sense a departure from her previous ones, I think. They pay homage to abstractionists like Zarina and Nasreen Mohammadi. The revisiting of this idiom provokes new questions about citation, context, and of course the contemporary. So I thought this would be a good opportunity to delve into all of that. The following interview has been conducted in Hindustani. Listeners can access a complete time-stamped English language transcript by clicking on the link in the episode show notes. Before we continue, I'd like to let our listeners know how to access the material accompanying our conversation. To view the images and other material being referenced and discussed in the episode, click on the link in the show notes to access the guide. You can also find the link to the guide for each episode in our Instagram captions and tweets. हाय अर्शी, वेलकम टू आर्टिलab. हमारे शो पर आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू कमाइनी मुझे बुलाने के लिए यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पे, और मैं बहुत ही आपकी शुक्रगुजार हूँ आर्टिलab की कि ये प्लेटफॉर्म मतलब मुझे अभी पता चला कुछ वक्त पहले ही, और ये बहुत ही अमेजिंग है. जब मैं गई मैंने टॉक सुने आर्टिस्ट के, और इट्स अमेजिंग. तो थैंक यू सो मच ये इस तरीके के प्लेटफॉर्म को लाने के लिए. थैंक यू सो मच. मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपको भी पसंद आया हमारी प्रोग्रामिंग. तो शुरू करते हैं आपके आर्टिस्ट बनने के सफर से. जो क्रिएटिव काम है हमारे समाज में अहमियत नहीं दी जाती है उसे, और फाइन आर्ट्स में तालीम लेना फिर उसे पेशा बना पाना मुश्किल है आज भी. थोड़ा हमें अपने शुरुआती दौर के बारे में बताएं, और ये कि आर्ट में आपकी दिलचस्पी कैसे बनी और आपने बरकरार कैसे रखी. काफी बड़ा सवाल है, और इसका एग्जैक्टली हमें अपनी जिंदगी के बारे में बताएं अर्शी. या जवाब देना बहुत ही थोड़ा सा मतलब मुश्किल तो नहीं है, लेकिन सब अल्फाज सही से ढूंढने होंगे. तो मेरे आर्टिस्ट बनने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था, जैसे कि सब लोगों का होता है. मैं बहुत ही छोटे शहर से हूँ, नजीबाबाद, जो कि नॉर्थ इंडिया में आता है. इट्स ऑन द बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश. नजीबाबाद बहुत छोटे शहर से हूँ, और मुझे लगता है कि फाइन आर्ट्स जो पेशा है उसको परस्यू करना, मुझे लगता है बड़े शहरों के जो लोग होते हैं उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है, और छोटे शहरों से जो लोग आते हैं लाइक मी, उनके लिए तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात हो जाती है. क्योंकि वहाँ पे जब लोग बात करते हैं किसी भी पेशे को अपनाने की, तो हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि उसका बेटा या बेटी डॉक्टर या फिर इंजीनियर. जिस मिडिल क्लास फैमिली से मैं आती हूँ, जहाँ पे प्रिविलेजेस ज्यादा नहीं है, मुझे लगता है मैंने उनके ख्वाबों पर पानी फेर दिया. when he saw me, like I was more interested in making
जो एक आपके हार्ट का जो डायग्राम होता है, उसको खूबसूरती से बनाने में आई वाज़ लाइक मोर लाइक इनटू इट रादर देन कि मैं स्टडी करूँ कि एग्ज़ैक्टली हार्ट कैसे फंक्शन करता है। इंटरेस्टिंग। और मुझे काफ़ी लड़ना पड़ा फाइनेंस अपनाने के लिए क्योंकि मैं मुस्लिम कल्चर से आती हूँ मतलब या और मेरे रिलीजन में प्रोहिबिटेड है तस्वीरें बनाना और मेरी जो परवरिश हुई और मेरी जो तालीम हुई वो मदरसे में हुई है तो मतलब बड़ा मुश्किल था लेकिन किसी ना किसी तरीके से उसको पूरा किया अपने ख्वाब को क्योंकि इसका एग्ज़ैक्टली जवाब देना कि कहाँ पे मुझे लगा कि आर्टिस्ट बनना चाहिए, ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एक लम्हा नहीं होता है वो जिसमें आप तय करते हैं या फिर 1 साल नहीं होता है। इट्स समथिंग कि शायद आपके बचपन से वो अ, होता है लेकिन मुझे इतना मौका नहीं मिला कि मैं बचपन से बहुत आर्ट करूँ या मैं हुँ, किसी को दिखाऊँ या कोई एप्रिशिएट करे ना। अगर कुछ भी करना होता है तो करना होता था तो आपको चुपके से करना होता था। तो या तो इसी तरह से मैंने भी आर्ट बहुत ही छुप-छुप के की और मुझे याद है कि मेरी मदर ने काफ़ी लड़ा भी मेरी एजुकेशन के लिए क्योंकि मैं सबसे बड़ी बेटी अपने घर की हूँ और जिस अ, मुआशरे से मैं आती हूँ वहाँ पे मुझे याद है कि मेरी हवेली में जो मेरे और कज़िन्स थे उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं थी पढ़ने की क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिलिजन को बहुत ही फंडामेंटल तरीके से फ़ॉलो करते थे उनके पेरेंट्स और उनकी किताबों को जला दिया जाता था। तो तो मेरी अम्मी ने काफ़ी लड़ा इस चीज़ के लिए, मेरे फ़ादर ने भी, लेकिन उसमें फिर फाइन आर्ट्स को चूज़ करना पेंटिंग करना जो कि बहुत ही नामुमकिन सी हुँ। बात थी, पर मेरी ज़िद के आगे और और मैं बहुत ही सीरियस किस्म की जो बच्चा होता है उस तरीके से थी, तो उन्होंने भी थोड़ा-सा समझा। तो फिर मुझे इजाज़त मिली जाने की अ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कहीं और नहीं। अगर पढ़ाई करनी है तो सिर्फ़ आपको अलीगढ़ जाना होगा, उसके अलावा आप कहीं नहीं जा सकते। अलीगढ़ में काफ़ी अच्छा था मैंने वहाँ पे जो अ, तालीम और अदब वहाँ पे सब सीखा। 4 साल के लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और उसके बाद मास्टर्स के लिए मैं जामिया आई। फिर वहाँ पे दिल्ली में एकदम अलग सी दुनिया देखी और थोड़ी-सी आज़ादी के साथ आर्टिस्ट से मिलना, उनका काम देखना, गैलरीज़ जाना। फिर मेरा मास्टर्स खत्म हुआ 2012 में और उसके बाद मैंने 7 से 8 मेरे 8 से 9 साल का ब्रेक लिया क्योंकि मुझे लगा कि अभी मिट्टी पकी नहीं है। वो तो अभी भी नहीं पकी है बट या ये ब्रेक मुझे लगा कि लेना ज़रूरी है और काम करने के लिए और अपने आप को समझने के लिए। मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि दिलचस्प लगा कि आपने खुद से सोचा कि आप अपने आर्ट को उस तरीके का समय दें, पकने के लिए। क्योंकि आई थिंक ये एक किस्म का दबाव भी होता है यंगर आर्टिस्ट्स पे, जब वो निकल कर आते हैं आर्ट स्कूल से कि इमीडिएटली एग्ज़िबिशन, नुमाइश उनके काम की हो, उनको एक किस्म का अटेंशन मिले। तो ये डिसीज़न लेना, ये निर्णय लेना उस वक़्त, बहादुरी का डिसीज़न कह सकते हैं इसको। या क्योंकि उस वक़्त में मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि मैं कभी वापस आ भी पाऊँगी या नहीं, लेकिन एक बात मेरे उसमें क्या कहते हैं, दिमाग में पक्की थी कि काम करना है और मुश्किल था क्योंकि आप बहुत चीज़ों का सामना करते हैं, आप सोसाइटी का सामना करते हैं स्पेशली लाइक यू आर डन विद योर मास्टर्स और आपके घर वाले फिर आपको देखते हैं कि व्हाट यू गोइंग टू डू नेक्स्ट आपने इतनी पढ़ाई की है, ये सब किया, इतना वक़्त दिया, इसके बाद क्या? तो मुश्किल भी था लेकिन मुझे मालूम था कि शायद ये सही वक़्त नहीं है कि अब मैं आर्ट में जाऊँ और गैलरीज़ के पास जाऊँ और कहूँ कि आप मेरा काम लगाएँ क्योंकि दबाव होता है, मुश्किल होता है। कुछ एग्ज़िबिशन्स ना कर पाना जब आप मास्टर्स से निकलते हैं। लेकिन मैंने अपना वक़्त लिया और शायद मुझे लगता है कहीं औरत होने के नाते ये एक तरीके से एक प्रिविलेज भी था कि आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है कि आप कुछ करें या आप कोई जॉब करें या कुछ आपको एक फैमिली चलानी है। तो इस चीज़ का फ़ायदा मुझे मिला कि मुझे उस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। या तो मैंने वक़्त लिया अपना 8 से 9 साल का वक़्त लिया और वापसी की और
या धीरे-धीरे चल रहा है। बाहर मतलब जब हम आर्ट के बारे में बात करते हैं या सफल आर्टिस्ट के बारे में बात करते हैं, तो वो एक एक बहुत विशेष किस्म की ट्रैजेक्टरी होती है। तो इस तरह आपका नैरेटिव काफ़ी अलग है उससे हुँ, हुँ। और आई थिंक ये बहुत अहम है। और ख़ास करके जो आपने बात कही कि हम जैसे लोग जो महानगरों के अलावा शहरों से आते हैं अगर कला में दिलचस्पी हो भी, हमारे यहाँ उस तरह के संसाधन या ढाँचे भी मौजूद नहीं होते जो समर्थन दे पाएँ उस दिलचस्पी को। बिल्कुल। तो इंसान और हतोत्साहित होता है और सोचता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इंजीनियर या डॉक्टर ही बन जाता हूँ या बन जाती हूँ। नजीबाबाद से जुड़ी एक्चुअली स्टोरी है। जब मैं छोटी थी तो मैं देहरादून की हूँ, जो उस वक़्त उत्तर प्रदेश का हिस्सा ओके। था और हमारे यहाँ जो रेडियो आता हुँ, था हुँ। सर्विस वो एआईआर का नजीबाबाद से आता था। हाँ, आकाशवाणी आकाशवाणी। तो बचपन में मेरी बहुत ही ऐसी दिली तमन्ना थी कि मैं नजीबाबाद के एआईआर स्टेशन पे जाऊँ और वहाँ हुड़दंग मचाऊँ। या नजीबाबाद आकाशवाणी या आई रिमेंबर यस तो अभी भी आप आ सकती हैं, हम दोनों हुड़दंग मचाएँगे व्हाट डू बिल्कुल, यू थिंक? अब आप ये असली कारण है आपको बुलाने का इस शो पे। मेरी पोल खुल गई। आकाशवाणी अ, तो लेकिन ये इस सब से जो आपने बताया अपने सफ़र के बारे में मैं ये भी सोच रही थी कि आपके काम में ये किस तरीके से तब्दील होता है और जैसे हम बात करेंगे आपके काम के बारे में शायद ये उभर कर भी आए। तो नगुफ्ता से पहले के जो आपके सीरीज़ हैं, जो काम मैंने हुँ, पहले हुँ। दिल्ली में देखा, वो है नफ़स, जो आपका पहला सोलो ब्लूप्रिंट 12 में था और या ब्लड बुक, जो कि शाइन एम्पायर में सीड्स आर बीइंग शोन एग्ज़िबिशन का हिस्सा रहा। एक तरह से ये दोनों सीरीज़ काफ़ी जुदा दिखाई पड़ते हैं। ब्लड बुक में बहुत हाँ। ख़ास किस्म की फ़िगरेशन है और नफ़स में उस एब्स्ट्रैक्शन की झलक मिलती है, जो कि नगुफ्ता में और खिल कर आता है। आपका क्या ख़्याल है? मैं शुरुआत करूँगी ब्लड बुक से क्योंकि ब्लड बुक की जो शुरुआत है वो मैंने की थी 2010 से। मैंने अपने जो 2010 से या पहले जब मुझे पीरियड्स होते थे ड्यूरिंग माय मेंसेस मैं पहले अपना ब्लड कलेक्ट करती थी एंड लाइक 1 और 2 प्रिंट देन उसके बाद उसको रखना हर महीने उस ब्लड के प्रिंट को बड़ा मेरे लिए मुश्किल हुआ देन आई स्टार्टेड डूइंग लाइक आर्ट वर्क कि उसको किसी तरह से मैं डॉक्यूमेंट करूँ माय पीरियड्स आई मीन हुँ, कैसे मेरे दिमाग में आया, क्यों आया मुझे अभी भी नहीं पता है। लेकिन अभी जब मैं करती हूँ ये काम लाइक हर महीने चाहे 1 काम मैं प्रोड्यूस करूँ या 2 काम तो बहुत ही मुझे क्योंकि पेनफुल होते हैं पीरियड्स आई मीन दे पेनफुल और दिमागी तौर से और फिज़िकली उनसे डील करना बड़ा मुश्किल होता है। ये एक अलग-सी बात है। तो बहुत ही एक तरीके से दर्द को कम करने वाला प्रोसेस है जब मैं हुँ, ब्लड बुक पर काम करती हूँ। तो ब्लड बुक सबसे पहले आती है, तो ब्लड बुक में नो डाउट इमेजेस हैं अ, और जब बात आती है नफ़्स की, तो नफ़्स मैंने शुरू किया ड्यूरिंग लॉकडाउन इन 2020 जब मार्च में हम सब कैद हो गए अपने घरों में और मैं क्योंकि मैं काबुल में रहती थी अ, मेरी शादी काबुल में हुई है, तो मैं अपने हस्बैंड से दूर हो गई और जहाँ तक मुझे लगता है मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम दोनों बहुत ज़्यादा मोहब्बत में हैं और बहुत मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि उस वक़्त ये था कि पता नहीं क्या हो जाएगा दुनिया का मतलब ये हुआ क्या है, बहुत ही मुश्किल था हुँ, इसको एक्सेप्ट करना सभी दिमागों के लिए कि वायरस और ये। तो अपने आप को एक तरीके से कहा जाए कि मैं इंसेन ना हो जाऊँ, सेन रखने के लिए आई स्टार्टेड राइटिंग लेटर्स। लेकिन लेटर्स जो राइटिंग है, जो खतों को लिखना है, फिर ये पहली बार नहीं था कि मैंने खत लिखना शुरू किया। जब आप खत लिखते हैं तो ऑब्वियसली उसमें राइटिंग होती है। हुँ, मुझे याद आता है कि जैसे मैंने बताया कि मेरी जो परवरिश है वो मदर से मतलब एक छोटी-सी जगह में हुई और मेरी जो तालीम है वो मदरसे में हुई। मुझे याद आता है कि जो मेरी मुलानी मतलब जो फीमेल मौलवी होती थी, हुँ, उनके हस्बैंड उनसे दूर रहते थे मुंबई और वो मुझसे कहती थी क्योंकि मुझे उर्दू आती थी, मेरी मदर ने मुझे घर पे उर्दू सिखाई थी, तो उर्दू और अरबिक में फ़र्क होता है, ज़रूरी नहीं कि जिसको अरबिक आती है हुँ, वो उर्दू भी लिख सके। तो वो मुझसे अपने खतूत लिखवाती थी अपने हस्बैंड के नाम। कि अस्सलाम वालेकुम बाद सलाम के अर्ज़ ये है कि आप खैरियत से हो, आपकी खैरियत की मैं दुआ माँगती हूँ और फिर जो उनकी चीज़ें होती थी वो प्रॉब्लम्स बताती थी और फिर एंड में कहती थी आपकी मुंतज़िर
फलानी, फलानी ओके। तो तो वो हमेशा मुझसे वो खत लिखवाया करती थी और फिर घर के कुछ और भी थोड़े से काम उनके होते थे जो वो कराती थी बट लाइक मुझसे इतना ज़्यादा नहीं, मुझे स्पेशली ये खत लिखने का काम मेरे ऊपर था। या तो ये जो नफ़स अ, के जो खत हैं, मुझे उसी की याद दिलाते कहीं न कहीं क्योंकि मैंने भी उसी फ़ॉर्मेट में लिखा कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जान और तो खत जब मैंने लिखना शुरू किया, तो उसमें ये था कि मैं अपने हस्बैंड के नाम खत लिखती हूँ। इरादा ये था कि जितने जितने वक़्त मैं उनसे दूर रहूँगी, मैं हर रोज़ एक खत लिखूँगी। हर रोज़ मुमकिन नहीं तो हर दूसरे या तीसरे दिन, लेकिन खत लिखूँगी। उसमें का आर्ट वर्क बनाना या इसका कोई कॉन्सेप्ट उस वक़्त नहीं था। तो जब मैंने खतों को लिखना शुरू किया, तो मैंने पाया कि ये खत दरअसल मेरे हस्बैंड के लिए है ही नहीं। है ना? इट इज़ लाइक कि आप जैसे खुद से खुद कलामी करते हैं, आप खुद को ढूँढते हैं और मेरे ख़्याल से सिर्फ़ मेरे लिए ही नहीं ये जो लॉकडाउन का पीरियड था, कि हम सब के लिए खुद को ढूँढने का एक वक़्त था। बहुत हम सब लोग, ज़्यादातर लोग हम खुद के अंदर गए और अपनी ज़ुबान को ढूँढा कि हम हैं क्या? बहुत सारी चीज़ों को गौर किया, रुक के, ठहर के। नो डाउट डर उसमें डर भी था कि क्या होगा लेकिन ढूँढा सबने। तो मैंने भी उसी तरीके से खुद को ढूँढा इन इन ख़तों के ज़रिए कि स्पेशली एक औरत का एग्ज़िस्टेंस और मेरा खुद का और एक बीइंग एन आर्टिस्ट, कुछ शिकवे, कुछ शिकायतें, तो एक नॉर्मल सी एक औरत के खुद की तलाश के। हम्म। हाँ, खुद की तलाश लेकिन थोड़े-से मोहब्बत के रंग में, या हम्म। हम्म। नहीं, मुझे एक तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि शायद आपने 120 खत लिखे कपड़े व पर। वन 130 अप्रॉक्सिमेटली 130 वाओ! मतलब बहुत स्टैमिना है हुँ। आप में यार। मुझे लगता है हम औरतों में स्टैमिना ज़्यादा होता है। नहीं, और ख़ासकर के क्योंकि अब आजकल के ज़माने में जब व्हाट्सऐप और फ़ेसटाइम ज़रिए हैं टच में रहने के लिए, तो और जब खत इतने दुर्लभ हो गए हैं, तो तब करना ये उसकी एक अलग आई थिंक अलग मोल है उसका, उन खतों का। और दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी जो आपने बोली कि जब आप अपनी मुलानी के बारे में बात कर रही थी कि वो लिखती थी कि आपकी मुंतज़िर, और मुझे मुंतज़िर शब्द से ऐसा लगा कि जो इंतज़ार करती हुई औरत का फ़िगर या है ना? या और हिंदुस्तानी और साउथ एशियन संदर्भ में तो इसकी एक पुरानी प्रथा रही है ना? जो मुंतज़िर की या मुंतज़िर जो ख़ासकर जो औरत विरह की वजह से दूर रहती है अपने प्रेमी से, अपने पति ब्रेनी से, या ब्रेनी या अपने चाहने वाले से। तो वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि वो भी एक तरीके से एक फ़िज़िकल परफ़ॉर्मेंस भी इसमें मौजूद थी ना। और जैसे आप नफ़स शब्द ही देखें, उसका मतलब भी साँस से जुड़ा हुआ होता है ना। और आप ध्यान में बिल्कुल हैं या और सोच रहे हैं अपने प्रेमी के बारे में, अपने आशिक के बारे में, इंतज़ार उसका एक रूप बन जाना। तो ये सब जो आप ये मतलब मेरा रिस्पॉन्स ये भी था जब मैं सोचती हूँ उन खतों के बारे में। येस, आई मीन लाइक प्रेमी के लिए तो नो डाउट लेकिन बाद में ये कुछ और हो गया। नहीं, जैसे आपने कहा वो एक खुद खुद के की साथ या जो एक रिश्ता हाँ, है खुद और की जो तलाश य हो गई हाँ, या वो खुद की तलाश हो गई क्योंकि मुझे लगता है जब आप हर रोज़ एक खत लिखते हैं किसी के नाम और अपनी बातें कहते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं। जी, वो किस्म की डायरी भी है ना, या एक बिल्कुल, रिकॉर्ड, बिल्कुल खुद का रिकॉर्ड। डायरी है या खुद का एक रिकॉर्ड है या जिसमें अगर मैंने कोई ख्वाब भी देखा तो उसका ज़िक्र किया और अगर कोई याद, कोई मेमोरी मुझे आई तो मैंने उसका ज़िक्र किया और कभी कोई शिकवा किया और जब कभी कुछ ज़्यादा बहुत ही कड़वा-सा शिकवा किया तो उसमें जब मैंने अल्फ़ाज़ लिखे तो उसके नुक्ते मिटा डाले मतलब ताकि कोई उसको पढ़ ना पाए। इवन अगर मैं खुद उस कड़वी-सी चीज़ को पढ़ूँ तो मैं समझ ना पाऊँ कि बट मुझे समझ में आता है कि हाँ, मैंने कुछ कड़वाहट यहाँ पे लिखी है बट एग्ज़ैक्टली आई डोंट नो कि लिखा क्या है। तो मैंने जानबूझ के नुक्ते वहाँ से हटा दिए ताकि कोई पढ़ ना पाए, इवन मैं खुद ना पढ़ पाऊँ। दिस इज़ इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कि बीइंग एन आर्टिस्ट ये आपके पास प्रिविलेज होता है कि आप क्रिएट कर सकते हैं आई मीन अपने जो आपका दिल चाहता है। नो डाउट कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं काफ़ी आपके कंधों पे बीइंग एन आर्टिस्ट लेकिन ये आपके पास एक प्रिविलेज होता है कि आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। कहीं न कहीं एक डिफरेंट उसका फेस दिखा सकते हैं, छुपा सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड होता है आपको कितना दिखाना और छुपाना है। दिस इज़ अमेजिंग मीन्स राइट।
इनफैक्ट कुछ खतों में ऐसा लगा, जैसे आपने पहले भी बात की इसके बारे में, कि एक साहित्यिक या अदबी ज़िक्र भी बहुत थे, पोएट्री और जो आपने पढ़ा उस सब की वो सब बातें भी उसमें कहीं न कहीं शामिल थी। और मैं सोच रही थी कि ख़ासकर कि 19वीं सदी, 20वीं सदी में जो उर्दू पोएट्री रही है, भले ही मुख़ातिब जो है ऊपरी तौर पर कोई आशिक या फिर खुदा समझा जाए, और कहीं न कहीं वो खुद के बारे में ही होता है। वो खुद से ही एक डायलॉग वो दूसरा व्यक्ति, वो जो इंटरलोक्यूटर होता है, वो बस एक बहाना है, और जो असली बातें हैं वो खुद से ही या खुद की रूह से ही जुड़ी हुई होती हैं। हाँ, क्योंकि अगर हम देखें कामानी जान, तो जैसे कि पोएट्री है और उर्दू पोएट्री, अब भक्ति भक्ति पीरियड में इवन जी, किस तरीके जी, से उन्होंने बात की है कि भगवान को एक प्रेमी के रूप में लिहाज से ढाला देखा गया। है, देखा है, हाँ। और जब बात आती है उर्दू पोएट्री की, तो वो भी बिल्कुल इस चीज़ से अछूता नहीं है। उसमें भी एक आशिक का ज़िक्र हुआ है, लेकिन वो आशिक, इट डिपेंड्स ऑन द लाइक पढ़ने हुँ, वाला कि वो आशिक को किस तरीके से लेता है। और नो डाउट आपकी जो बात है बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि खुद के बारे में वो बात करता है। कहीं न कहीं ये सही भी है, क्योंकि अगर हमें खुदा को जानना है, खुदा मतलब ये नहीं कि एक मुस्लिम गॉड या फिर एक नहीं, खुदा हिंदू गॉड, इज़ नो। अ एज़ खुदा हुँ, मतलब कि एक बियॉन्ड जो पावर है, अगर हुँ, उसको जानने का तरीका जो बताया गया है तरीक़त में, वो ये है कि पहले आप खुद को जानें, फिर खुद ही से आप बेखुदी की तरफ जाते हैं और आप खुदा से मिलते हैं ना। तो हाँ, ये बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफ़ाक रखती हूँ। जी। और क्योंकि हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, मुझे लगा जो फ़ॉर्म है नफ़ज़ का, जो कि बाद में नगुफ्तहा में भी और देखते हैं उसे, जो एक अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट चित्रकारी की तरफ आप बढ़ने लगी। लेकिन इसमें भी तस्वीरें हैं, कुछ पुरानी जिनको आपने नई शक्ल दी। मसलन वो बगैर सूरत वाली औरत का यहाँ सिर्फ़ आकार दिखता है। और कुछ ऐसी भी जो पहले नहीं देखी शायद, जैसे कि तख्ती, दिल, कुर्सी। तो इसके बारे में थोड़ा बताएँ कि ये सब डिसीज़न्स आपने कैसे लिए इस सीरीज़ में? तो ये जो इमेजरीज़, लाइक ये जो आप बता रहे हैं कि तख्ती, दिल और इसके अलावा क्या? तख्ती, दिल, कुर्सी। कुर्सी, या तो ये पहली बार नहीं था कमायनी, जो मेरा इवन मास्टर्स का जो वर्क है, या उसमें ये सब चीज़ें थी ऑलरेडी। दिल बाद में आया, नो डाउट, दिल उस वक़्त नहीं था, लेकिन कुर्सी, औरत, तख्ती, ये सब और टेक्स्ट, इट वाज़ देयर। हुँ, लेकिन अमूर्त जब आप कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट की तरफ आना, तो यकीन माने कि बैचलर और मास्टर्स में मैं बहुत इमेजेस, मेरा इमेज बेस्ड काम था, और लेकिन एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज है जिसके लिए मेरा दिल, मतलब दिल में एक वो होती है कि लाइक मुझे इसको पाना है, लेकिन हुँ, एब्स्ट्रैक्ट बड़ी मुश्किल चीज है, हाँ? मेरे लिए एटलीस्ट बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और एब्स्ट्रैक्ट को पाना एक ख्वाब की तरह मेरे लिए है कि हुँ, मैं एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाऊँ, लेकिन मुझे पता है कि ये हर किसी की अपनी जर्नी होती है। कोई बहुत ही जल्दी एब्स्ट्रैक्ट को अ, अपने अंदर उतार लेता है, लेकिन मेरे लिए ये स्टेप बाय स्टेप है। मतलब धीरे-धीरे मैं उसकी तरफ जाती हूँ, और मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि ये एक इबादत की तरह है कि मैं हुँ, कभी उस जगह तक पहुँच भी पाऊँगी, मैं इस काबिल हूँ या नहीं, ये मुझे नहीं पता अभी। इसका ये एक सवाल है। तो नागुफ्तहाए जो है, ये उसी का एक इन बिटवीन हुँ, एक चीज़ है कि मतलब आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाने की कोशिश में आप उन चीज़ों को भी कहीं न कहीं ऐड करते हैं जो आपके उस अब तक के सफ़र का हिस्सा होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तख्ती है, सॉरी, नफ़स में तख्ती है, या फिर एक बिना फेस की औरत है, दिल, अ हुँ, तो और नागुफ्ताहा में भी ये सारी चीज़ें आई हैं, जो अनस्पोकन वर्ड्स ऑफ हवा है, हुँ। तो उसमें भी ये है सीरीज़ में बहुत ही विज़िबल। अ, ये जो रूप लिया इन जिन्होंने, अ, वो औरत जो बगैर सूरत की है हुँ, मसलन, हुँ। ये इनके पीछे कहानी क्या है? बगैर फेस नहीं। क्योंकि वो सबसे स्ट्राइकिंग इमेज है आपके काम में और वो रह जाती है ज़हन में, एक बार देख ली जाए तो। अ, हाँ, क्योंकि या कोई कोई फीचर्स उसके नहीं, ना आँखें हैं, ना नाक है, ना मुँह है।
तो इसकी भी शुरुआत मास्टर्स से ही होती है इन 2010 व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग। ये जो औरत है, तो उसकी सिर्फ़ आँखें होती थी, नाक और मुँह फिर भी नहीं होते थे। फिर आते-आते वक़्त के साथ-साथ इन इन 13-14 मैंने उसको भी रिमूव कर दिया। और बिना फेस की औरत का एग्ज़ैक्टली मेरे पास आंसर नहीं है कि क्यों मैं इस तरीके से करती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि सबकॉन्शियसली कहीं न कहीं इसके पीछे जो हो सकता है, एग्ज़ैक्ट रीज़न मुझे भी नहीं पता, लेकिन कहीं न कहीं ये है कि जब मेरी अपब्रिंगिंग हो रही थी, मेरी परवरिश हो रही थी, तो और मदरसे में हुई, तो कहीं न कहीं ये कि जो इस्लाम में है कि ये जो इमेजरी होती है, कि मतलब जो ज़िंदा जान होती है, जिन चीज़ों में जान हो, जिसकी आँखें हो, मुँह हो, नाक हो, तो उसकी हम पिक्चर नहीं लगा सकते घरों में। और अगर पिक्चर लगी भी हो किसी के घर में, तो वहाँ पर आप इबादत नहीं कर सकते, नमाज़ नहीं पढ़ सकते। तो मतलब किसी भी ज़िंदा जान को बनाना इस्लाम में गुनाह है, क्योंकि अगर आपने बनाया किसी को, इवन कि बस एक फेस बनाया, उसमें से 2 आँखें और हुँ। इतना कान बना दिए, तो कहते हैं कि जब आप मर जाएँगे तो उसमें जान डालनी होगी आपको। मतलब एक स्टोरी बचपन में हम कहते थे कि इस तरह से आपको जान डालनी होगी, बच्चे एक-दूसरे से बात करते थे ना कि कैसे हुँ, वो एक क्रिएट हो रही थी कहानी। तो कहीं न कहीं हुँ, इसके पीछे वजह भी यही है, और एक तरीके से कहना चाहिए कि सटायर भी नहीं मैं कहूँगी, लेकिन शायद वजह वही है। ये वजह नहीं कि इस वजह से मैं बनाती हूँ कि खुदा को बुरा ना लगे, लेकिन एक तरीके से इस कॉन्सेप्ट पर, कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि ज़िंदा जान को मत बनाएँ, हुँ, और उसपे कमेंट करना एक तरीके से, उसपे एक तरीके से प्रहार करना, हुँ, उस चीज़ पे अ, एक इमेज बनाना औरत की इस तरह से, और औरत की इमेज कहीं न कहीं बनाने के पीछे वजह ये भी है कि बहुत वक़्त मेरा औरतों के साथ गुज़रा है, मेरी स्कूलिंग, और फिर जब हुँ, मैं कॉलेज गई, तो वहाँ पर फिर आप हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ पे पूरे बस आप औरतों के चारों तरफ इर्द-गिर्द हुँ, मेरी ज़िंदगी घूमी है। फिर जब मैं काबुल गई और फिर मैंने वहाँ पे जाना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अगर आप फीमेल हैं, तो फिर आपको फीमेल अ, उस दायरे में ही रहना होता है। इवन हुँ, शादी के बाद भी, कि एक औरतों का ही दायरा होता है, आप उस दायरे से बाहर नहीं निकल सकते, आप मर्दों से बात नहीं कर सकते हैं। वो वहाँ का एक कल्चर है, एक तरीका है, जिसमें मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जानने के लिए। एक तरीके से सब्जेक्ट मैटर की तरह काम किया इस चीज़ ने। वहाँ पे औरतों की ज़िंदगी को जाना, उनकी चीज़ों को, और तब बहुत ही मुझे ये चीज़ स्ट्राइक की कि उनकी ज़िंदगी औरतों की। तो फिर मैंने, या कहीं न कहीं ये सारी वजह मिल गई इसको, ये जो हुँ, औरत है बिना फेस और आँख की, जो बोल नहीं सकती, जो स्मेल नहीं कर सकती, देख नहीं सकती, और अगर आप देखें तो ये जो नीचे का फिगर है, हुँ, उसका एक जो स्ट्रक्चर है, जो फ़ॉर्म है, वो बिल्कुल एक दरवाज़े की तरह है। हुँ, तो इसको स्पेशली ये मुझे पता है कि ये क्यों है, क्यों मैं इसको दरवाज़े की तरह बनाती हूँ, अगर आप देखें तो एक डोर जी, की तरह। वो ये कि जैसे कि आप ज़ाहिर से बातिन की तरफ हुँ, जाते हैं। ये हुँ, जैसे फीमेल बॉडी, लाइक इवन मेरी बॉडी एक एक जाने का ज़रिया है किसी दूसरी दुनिया में, बातिन हुँ, बातिन में, हाँ। जी। एक्चुअली मुझे बाद में ये लगा मैं जब देख रही थी तस्वीरें, पहली बार देखने के बहुत बाद, तो मुझे वो शायद पैंडेमिक के दौरान ही था, तो ऐसा लगा कि अब ये कितनी प्रासंगिक छवि हो गई है, क्योंकि ऐसा भी लगा कि जैसे मास्क की वजह से हम सबके चेहरे छिप गए हैं। मेरे दिमाग में ये भी आ गया हुँ, कि अब मैं इसको एक अलग नज़रिए से, अलग अम, दृष्टिकोण से देख पा रही हूँ। यू नो लाइक बिकॉज़ यू आर ये सीइंग मैं देम समझ अन्यू। सकती हूँ। हाँ, बट एंड आल्सो लाइक 2 चीज़ें, तो ये ज़ाहिर-बातिन की जो आपने बात की, नगुफ्तहा के बारे में अगर हम बात करें, हुँ, तो उसका मतलब ही होता है जो कहा ना जा सके, है हाँ, ना? तो जब मैंने सबसे पहली बार ये देखा तो मुझे फ़ौरन ज़रीना की याद आई। उनके काम में जो एक दर्दनाक खामोशी के साथ जूझना है, वो मुझे याद आया, और ये भी मुझे लगा कि जो व्यक्त या बयाँ नहीं किया जा सकता, जो बातिन है, उसे इस तरीके से एब्स्ट्रैक्शन में ढालना कैसे हुआ, और इस्लामिक मिथोलॉजी से प्रेरित है जैसे ये सीरीज़, और इस्लामिक आर्ट के अंतर्गत एब्स्ट्रैक्शन की बहुत पुरानी और उम्दा एक का एक इतिहास रहा है। बिल्कुल।
तो वो डिसीज़न मैं जानना चाह रही थी कि आप थोड़ा हमारे लिए एक संदर्भ में बिठाएँ, ना जो चीज़ नहीं बोली जा सकती, जो बयाँ नहीं हो की जा सकती, उसका एब्स्ट्रैक्शन के साथ तो एक ताल्लुक है ही बहुत पुराना, है ना? बिल्कुल। और उसका एक आर्ट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो इस्लामिक आर्ट के साथ एब्स्ट्रैक्शन का एक रिश्ता रहा है हमेशा। तो मैं जानना चाह रही थी कि इन दोनों चीज़ों को आप अपने आर्ट जब ख़ासकर कि नगुफ्ता के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, तो आप कैसे सोचती हैं इसके बारे में? डायरेक्टली तो मैं नहीं कह सकती, मुझे नहीं पता कि ये इस्लामिक जो एब्स्ट्रैक्शन, लेकिन या यस यू आर राइट, क्योंकि मेरा जो काम है जब मैं कि बिल्कुल इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। अब मेरा जो ये सॉरी हमारा जो मुगल मिनिएचर है और पर्शियन मिनिएचर और स्पेशली जो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर उसमें जो मीनाकारी और जिस तरीके से चीज़ों को बनाया जाता है, कैलीग्राफी को लिखा जाता है इन एब्स्ट्रैक्ट वे, तो उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर है। मुझे जो ज़रीना के काम को देखकर जो मतलब एक एसोसिएशन मैंने बनाई ना जैसे कि जो जो चीज़ इनएक्सप्रेसिबल है, जो नगुफ्ता यस, है ना? या जो बात नहीं की जा सकती। क्योंकि उनके काम में में तो एग्ज़ाइल का दर्द हमेशा था ही, लेकिन इस काम में भी एक किस्म से एक उदासी है। बिल्कुल है, और मुझे लगता है कि हम कहीं न कहीं हम सब, आप में हम सब एक वो उस ना कहे जाने वाले दर्द से जूझते हैं। भले ही हमारी ज़िंदगी में सब कुछ है, तो ये जो चीज़ें हैं, हम सब इससे जूझते हैं, और ये एक तरीके से कहा जाए तो बहुत ही मैं खुशनसीब हूँ कि वो मुझे तरीका, वो ज़ुबान आती है कि कैसे मैं उस चीज़ को एक्सप्रेस करूँ, उस दर्द को। तो ज़रीना ने अपने तरीके से उस दर्द को एक्सप्रेस किया, लेकिन ज़रीना से ज़्यादा मैं मुतासिर हूँ इस मामले में नसरीन मोहम्मदी जी से। किस तरीके से उन्होंने दर्द को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, मतलब जैसे खामोशी को और एक खामोश हुँ, कोना, ये मेरे काम में काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ें आती हैं, तो उनसे ज़्यादा स्पेशली नसरीन हुँ, मोहम्मदी से ज़्यादा मुतासिर है रादर देन ज़रीना हाशमी से। हुँ। अ, या जी। एंड इन फैक्ट इट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि न नसरीन मोहम्मदी के काम को भी ज़्यादातर उसका जो स्पष्टीकरण होता है वो इसी तरीके से किया जाता है। एक रूहानी, एक स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट है उनके काम का और जो आप पहले बात कर रही थी इबादत के बारे में, जब आप सोचती हैं कि कैसे उस स्तर तक पहुँचा जाए। बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि नसरीन का जब मैंने काम देखा तो स्पेशली उनके फ़ोटोग्राफ्स और किस तरीके से वो क्लिक करती थी फ़ोटोग्राफ्स को, तो मुझे हुँ, लगता है कि एक-एक लम्हा जो उन्होंने देखा, एक-एक हुँ, सीन, वो इस तरीके से था जैसे कि वो खुदा से कम्युनिकेट करती है। मतलब अ, मेरे जी। लिए बहुत ही हुँ, ज़्यादा अमेज़िंग था नसरीन का काम। हुँ, या क्योंकि नसरीन का काम वो शुरुआत थी कि मैंने पहले नसरीन का काम देखा, और बाद में मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो ज़रीना हाशमी जी से हुआ बहुत बाद में। एंड इट वाज़ द फर्स्ट टाइम जब मैंने ज़रीना हाशमी का काम देखा इन 2011 और 12 इन बिटवीन, आई डोंट रिमेंबर, इन गैलरीज़ पास, और मैं बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुई उनके काम से। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में थी, तो नाम उनका मैंने सुना था। ज़रीना हाशमी का काफ़ी नाम था, लेकिन कभी वक़्त इस तरह से कभी नहीं वो हुआ कि मैं उनका काम देखूँ। मैंने, बहुत ही अफ़सोस की बात है कि मैंने बाद में उनका काम देखा, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि जब शिबली रोड पे हम लोग हुँ, लैंडस्केप के लिए जाते थे, सारे क्लासमेट, तो ज़रीना का जो जहाँ पर घर था, हम हुँ, उसी के आस-पास बैठ के, जो कि टूट गया था शिबली रोड पे उनका, जिस घर में वो रहती थी। वहाँ पे प्रोफ़ेसर्स वग़ैरह अभी भी वहाँ रहते हैं। तो वहीं पे आस-पास बैठ के हम लैंडस्केप्स बनाया करते थे, हुँ, और क्या कि मतलब उसी जगहों से मेरा गुज़रना हुआ है, जहाँ पे जी। कभी ज़रीना हाशमी रही हैं। उस जगह को देखा हुँ, है, और हुँ, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई भी की, तो अभी मुझे लगता है कि एक एक अजीब-सा एक रिश्ता उनसे बन गया है, कि बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, स्पेशली जब वो घर को देखती हैं, कि हमेशा उनके लिए जो एक हुँ, अलग उस मायने रखते हैं। तो स्पेशली मेरे लिए भी, कि अभी तक एक घर का ना होना और वो जो घर की तलाश है, अ, ये एक बहुत ही दर्द भरा है। तो उतना तो नहीं जितना ज़रीना का, क्योंकि ज़रीना का दर्द बहुत ही हुँ, अलग तरीके का है, लेकिन मैं कहीं न कहीं महसूस कर सकती हूँ, उस जगह से आने पर, उस चीज़ को, कि घर ना होना, एक एक जगह को अपने घर का कहना।
कितने मायने रखता है एक इंसान के लिए। या अम, एक एक फ़ारसी शब्द मैंने हाल ही में सीखा, जहाँ-गश्त। तो आप इतनी जहाँ-गश्त हैं, हुँ, हुँ, हुँ। हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में तो हुँ, रही ही हुँ। हैं और दिल्ली में रही और फिर अलग-अलग जगहों पे जाती रहती हैं, काबुल में भी रहीं, फिलहाल जर्मनी में हैं। थोड़ा बताएँ आपकी प्रेरणाओं के बारे में, चाहे वो जगह की हो, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, आर्टिस्ट की हो, राइटर की हो। लेकिन ये जगह वाली चीज़ से मुझे रुचि है जानने में कि किस तरीके से आप उसको लाती हैं अपने काम में? तो जगह का ये है कि किसी भी जगह पे जब हम रहते हैं, वहीं पर जहाँ पर हमारी पैदाइश होती है, हम धीरे-धीरे बड़े होते हैं, तो वो जगह एक स्ट्रक्चर एक एक सॉलिड चीज़ नहीं रह जाती। वो इस तरह से होती है कि आपके अंदर शामिल हो जाती है। आपके आपके कहा जाए तो अ, खून और हड्डियों का एक हिस्सा हो या फिर आपके रूह का एक हिस्सा बन जाती है वो जगह। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम नॉट इन नजीबाबाद नाउ, लाइक बट मैं जो उसकी गलियां हैं, अगर मैं बात करूं किसी हुँ, पर्टिकुलर गली की, तो उसको आप महसूस कर सकते हैं। उसकी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, एक चीज होती है, एक तासीर होती है, तो आप उसको फील कर सकते हैं। तो जगह का बहुत ही ज्यादा मेरे मेरे कामों में, मुझ में बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट है। हुँ। जिस जगह में मैं रहती हूँ, चाहे वो मेरे घर का एक कोना हो या मेरे शहर की एक छोटी सी गली हो जिसमें सिर्फ एक बार मैं गुजरी हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। जी। जी। और जब जगह की बात कर रहे हैं तो थोड़ा ज़ुबान की बात में मैं वापस आना चाहती हूँ, क्योंकि ज़ुबान भी एक किस्म की जगह बन जाती है ना, क्योंकि हमारी एक बिलॉन्गिंग होती है और ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर रहती है, जो हम एक जगह जो हम अपने साथ सब जगह ले जा सकते हैं, है ना? तो बिल्कुल, आपके काम में उर्दू ज़ुबान की काफ़ी अहमियत है, वो तो प्रत्यक्ष है, लेकिन आपने खुद भी बयाँ किया ये और बिल्कुल। मुझे एक्चुअली सबसे पहली बात तो आपके वो अटपटे शीर्षकों से मेरे बात दिमाग में बात बैठी कुर्सी और दिल की बात, अलिफ से अनार, तो मुझे बहुत प्लेफुल भी लगा जो आपका यूज़ है उर्दू का। और जो खत और या कैलिग्राफिक लेखन के तौर पर जो हर्फ का इस्तेमाल है, वो तो है ही, वो तो दिखता ही है आपके काम में। तो थोड़ा और मैं जानना चाह रही थी। या इससे पहले टेक्स्ट का इस्तेमाल जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वन ऑफ माय प्रोफेसर वसीम मुश्ताक वानी, तो ही वाज यूजिंग टेक्स्ट इन हिज आर्ट वर्क एंड ही इज फ्रॉम लाइक शांति निकेतन, वो पास आउट हुए, तो कहीं ना कहीं रविन्द्रनाथ टैगोर का यूजिंग द टेक्स्ट, लाइक हाउ ही वाज यूजिंग टेक्स्ट, फिर कैसे रविन्द्रनाथ टैगोर से उनके काबों में आया वसीम मुश्ताक वानी के, और कैसे मैं फिर उससे मुतासिर हुई। फिर उसके बाद जरीना हाशमी का काम देखा उन्होंने, कैसे टेक्स्ट को यूज किया, और फिर नसरीन मोहम्मदी ने टेक्स्ट को इस्तेमाल किया। तो दिस इज हाउ लाइक किस तरह से कनेक्शन बन गया ना। तो ये सफर वहां से शुरू हुआ। जैसे आपने ज़रीना की बात की, आपने अपने एएमयू प्रोफ़ेसर की बात की। किस तरीके से आप सोचती हैं भाषा के बारे में, जब आप उसको बोलने और उसको एक इंस्क्रिप्शन के रूप में लाने में फ़र्क है। तो आप कैसे सोचती हैं उस डिफ़रेंस के बारे में? बिल्कुल, बोलने और लिखने के मामले में फ़र्क है, और उर्दू जो ज़ुबान है, ये मेरी अम्मी ने पहली बार मेरा तारुफ़ कराया उर्दू से। उन्होंने मुझे सिखाई, क्योंकि वो खुद उर्दू में लिखती हैं, लेकिन ये अलग बात है कि जो भी वो लिखती हैं पोएट्री, वो एक स्टोर के कोने में उनकी डायरी छुपी रहती है, और वो उस डायरी को जब भी वक़्त मिलता है दोपहर में, कभी सारे काम करने के बाद उस डायरी में वो कुछ लिखती हैं, और फिर से वहीं पे वो डायरी किसी धूल बहुत स्टोर में जहाँ पे आप सारा अपना सामान रखते हैं, खराब सामान, वहाँ पे वो धूल के किसी कोने में रहती है। तो उर्दू से मेरा तारुफ़ उन्होंने कराया, मेरी मेरी मदर ने। उन्होंने मुझे शुरुआती दौर में गालिब से तारुफ़ मेरा किया, मीर से किया, और परवीन शाकिर, और मतलब उर्दू पोएट्री से, इवन ताफ़ हुसैन हाली, कैसे वो बच्चों के लिए प्लेफुल चीज़ें उन्होंने लिखी, उससे कराया। तो मेरी अम्मी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, उर्दू। और फिर एक ऐसे स्कूल से पढ़ाई करने पे जहाँ पे उर्दू और अरबिक ये सब बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाने के बाद जब देखा कि कैसे वसीम मुश्ताक, लेकिन उस वक़्त मुझे क्लियर नहीं था कि मैं उर्दू का इस्तेमाल करूँगी अपने कामों में। हुँ, फिर जब इन 2010 आई स्टार्टेड वर्किंग विद उर्दू, क्योंकि जब मैं
जामिया में थी, देन देयर वाज़ दिस वन सेमिनार जहाँ पे हुआ दिल्ली में कि उर्दू ज़ुबान जो है वो मर रही है, हुँ, वो मरती जा रही है। तो फिर मैंने सोचा कि इस मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूँ कि ये जो ज़ुबान है, इट्स नॉट लाइक कि किसी मुसलमान की ज़ुबान है या किसी पर्टिकुलर पर्सन की, लेकिन एक ज़ुबान है। ज़ुबान मुझे लगता है किसी भी रिलीजन और किसी भी कल्चर से ऊपर बढ़कर होती है, ठीक है? वो ज़ुबान हर किसी की होती है, किसी एक की नहीं होती। कि उर्दू ज़ुबान बढ़ रही है तो उस इस तरीके से मैंने एक एक ऐसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट की तरह उसको इस्तेमाल करना शुरू किया एक तरीके से कि हुँ, उर्दू उर्दू को। और कब ये मेरे खून में रवा हो गई मुझे भी पता नहीं चला। और कब मैं लिखने लगी और मुझे मुझे भी नहीं पता चला। और अभी मुझे लगता है आगे का मुझे पता नहीं, लेकिन अब तक बहुत ही मुझे ज़रूरी लगता है कि अगर मैंने कुछ बनाया तो उसमें मैं कुछ लिखूँ, मैं उसको कोई ज़ुबान दूँ कि मैं क्या हुँ, सोच रही हूँ इस चीज़ के बारे में, और उसको मैं लिख देती हूँ। और मेरे टाइटल्स जो बड़े अटपटे होते हैं, वो इन्हीं जो लिखा हुआ है उसी से आता है। दिल और कुर्सी की बात, तो अगर दोनों में मैंने लिखा है कुछ कि दोनों में गुफ्तगू हुई है किसी चीज़ को लेकर, या तो दिल ने कुर्सी को कुछ कहा है कि क्यों तुम कोने में हो, या जो भी कोई चीज़ें हैं, या हुँ, कुर्सी ने दिल से कुछ कहा है तो उसको बस लिख देना, उसको एक एक अ, और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि हुँ, उसके साथ खेलना, टाइटल्स के साथ अ, थोड़ा-सा अपनी ज़ुबान में बड़ा इंटरेस्टिंग सा उसको बनाना मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि इंग्लिश में मेरे लिए बाप खुदा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इंग्लिश के टाइटल्स। और फिर मेरे एक दोस्त हैं नीरज, वो फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं मेरे लिए उर्दू से। बहुत अच्छे उर्दू के वो जानकार हैं, उर्दू उनको अच्छे से आती है, इंग्लिश के अच्छे जानकार हैं, तो वो बड़े अच्छे से फिर उसको ट्रांसलेट भी कर देते हैं। क्योंकि मेरे लिए उसको पहली ज़ुबान इंग्लिश में लिखना एक टाइटल को बड़ा मेरे लिए नामुमकिन सी बात है। मुझे लगता है पूरी ज़िंदगी आई गेस आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। आई विल नॉट एबल टू। No, I mean, it's like what you said, it's about वो जो एक रिश्ता कायम होता है एक भाषा के साथ या जो भी, जो हमारी पहली, दूसरी, तीसरी भाषाएँ होती हैं, उसका एक अलग हाँ, उसके साथ एक अलग किस्म का रिश्ता होता है। इंग्लिश के बारे में कभी-कभी मैं खुद भी ये सोचती हूँ कि मैं एक राइटर हूँ और मैं तो इंग्लिश में लिखती हूँ, लेकिन हाल ही में मुझे लगने लगा है कि क्या मैं एक्चुअली इंग्लिश में सब कुछ बयाँ कर पा रही हूँ? ये नई कश्मकश नहीं है, ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम है जो इंग्लिश राइटर्स हैं सब कॉन्टिनेंट के उनके लिए, और अभी तक मेरे मैं भी जूझ रही हूँ इससे। और इनफैक्ट उर्दू के बारे में तो ऐसा है कि मैंने भी उर्दू हाल ही में सीखी, 2-3 साल हो गए हैं, मैं पढ़ती हूँ उर्दू बहुत धीरे-धीरे, आपके जैसी नहीं है। मतलब अभी मैं कच्ची है, लेकिन नहीं मैं भी धीरे-धीरे पढ़ती हूँ, कम आई नहीं, मैं भी तेज़ ज़्यादा बहुत ही फ़ास्ट मुझे बहुत तरीके वक़्त से। लगता है, हाँ। तब भी मतलब जो आप कह रही थी पहले वो तो सच है कि मतलब उर्दू तो वैसे भी नॉर्थ इंडिया में सबकी भाषा थी। कभी भी उस तरीके से किसी मज़हब से उसका व कोई ताल्लुक नहीं था। वो तो बाद में कई राजनैतिक कारणों, सियासी कारणों की वज़ह से उस तरीके से उसको कम्युनलाइज़ किया गया। जो मैंने नगुफ्ता ए हवा में देखा तो एक तरीके से उस सीरीज़ में जो दे उसको अगर देश और दुनिया के संदर्भ में देखा जाए, तो कई बातें समझ आती हैं, कई चीज़ें उभर कर आती हैं। चाहे वो सीएए हटाने की लड़ाई हो या जंग के कारण घर उजड़ने का डर हो, मतलब ये दोनों चीज़ें हम इन सब का सामना कर रहे हैं। इस बात पर मैं पूछना चाह रही थी कि आज की तारीख में 2 चीज़ें हो रही हैं एक साथ। हम लोग जो ग्लोबल साउथ के लोग हैं, जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, तो हमें और हमारे काम पर वजूद से जुड़े रिप्रेज़ेंटेशन का भार डाल दिया जाता है। बेशक ये समस्यात्मक हुँ, है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अब हमारे देश में हिंदुत्व का प्रकोप है, उससे जो माहौल पैदा हुआ है, जहाँ वजूद को औज़ार बनाया जा रहा है अवाम के खिलाफ, ख़ासकर मुस्लिम जनता के खिलाफ। एक आर्टिस्ट होने और नागरिक होने दोनों के लिहाज से आप इस मुश्किल मुद्दे को अपने काम में इसका सामना कैसे करती हैं? खामोशी से। नगुफ्ता हाँ। या खामोशी से करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अ, कि अभी ऐसे भी ज़ुबानें बंद कर दी गई हैं, लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बेहतर है आप खामोशी से उसको अपना प्रोटेस्ट करें,
अपनी चीज़ें जारी रखें और ज़रूरी नहीं कि एक चीज़ को बिल्कुल डायरेक्टली बताया जाए और मेरा जो काम है और जिस तरीके से मैं सोचती हूँ, मुझे डायरेक्टली चीज़ें ज़्यादा किसी चीज़ को एकदम से कह देना से बेहतर मुझे वो लगता है कि आप उसको खामोशी से बहुत ही सॉफ्ट तरीके से जिस वो और ज़्यादा पेनिट्रेट करे वक़्त के साथ, उसका असर ज़्यादा वक़्त तक रहता है। और मैं उसी की मुरीद हूँ, उस तरीके से बात को कहने की। इसका जवाब देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कामायनी एक क्योंकि पॉलिटिकल चीज़ है और डायरेक्ट हुँ, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है कि कैसे मैं इसे किस तरह से कहती हूँ, क्या करती हूँ। लेकिन मेरे कामों में ये चीज़ें आती हैं। डायरेक्ट नहीं तो खामोशी से लिखती हूँ या कभी-कभी आती हैं, चीज़ें आती जी, हैं। बट हमेशा इस चीज़ पे बेस्ड नहीं होती या और भी चीज़ें हैं जी। आई थिंक ये ऐसी चीज़ है जो आर्टिस्ट के नियंत्रण में हमेशा नहीं भी रहती ना, जो देख रहा है इमेज को। हमारा एक अपना रिश्ता बनता है इमेज के साथ, है ना? और हम जिस जगह से उस चीज़ को देखते हैं और फिर वो एक किस्म का वो गुफ्तगू होता है आर्टिस्ट और स्पेक्टेटर के बीच हुँ, का ना, हुँ। जो कि कई रूप ले सकता है। उसका एक ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीके से वो अ, समझा जाए। खामोशी में भी एक ताकत होती है, अगर आप उसको वैसे इस्तेमाल करें, जो कि शायद आप अपने काम में करती हैं। और वापस मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि आप जैसे आपने बात की औरतों के लाइफ वर्ल्ड्स के बारे में, जो कि काफ़ी हद तक आपके काम में मौजूद है। जो आप मटेरियल इस्तेमाल करती हैं चाहे वो फ्लावर डाई पेस्ट हो, कपड़ा हो यहाँ तक कि घर की दीवार पे भी आपने काम किया है। तो ऐतिहासिक तौर पे ये ज़्यादातर औरतों की कलाओं में पाए जाते हैं, कोट अनकोट। अ, और जो आप बनाती हैं इस मटेरियल के साथ, उसमें एक फेमिनिस्ट नज़रिया साफ दिखता है, कम से कम मुझे। तो ये वुमेन्स आर्ट और फेमिनिस्ट आर्ट के बीच का जो संबंध है, वो आप कैसे समझती हैं? ये तनाव का है या सुलह का है? ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सवाल है, तो पता है। बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन तनाव और सुलह, मुझे लगता है ये बीच का कुछ है। क्योंकि कभी-कभी मुझे लगता है कि दोनों एक-दूसरे से जुड़े हैं और कभी-कभी मुख्तलिफ से बिल्कुल मालूम होते हैं। हुँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नो डाउट अब आप एक औरत की आर्ट को जिसको हम एक एक बॉक्स में रखते हैं कि फेमिनिस्ट आर्ट उससे अलग नहीं कर सकते हैं और कहीं न कहीं एक औरत की आर्ट को वो एक इंडिविजुअल की एक वो उसमें औरत या मर्द होने की बात नहीं है। और मुझे हुँ, लगता है एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में वो वक़्त आता है, चाहे वो मर्द हो या औरत, जब उसकी जो आर्ट है वो हर चीज़ से ऊपर उठ जाती है। वो हर फिलॉसफी किसी भी फिलॉसफी के बॉक्स में वो बंद हुँ, नहीं होती है। राइट तो मुझे अभी भी नहीं पता है कि किस तरीके से इस चीज़ से मैं कोप अप करूँ। कभी-कभी नो डाउट काम है जो औरतों के बेस होता है, जैसे नागुफ्तहाए हवा है और ब्लड बुक है, अगर आप देखें तो। हुँ, लेकिन उसके साथ-साथ नफ़स है जो कि बहुत ही सॉफ्ट सा एक 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 औरत की एक एक खुद को तलाश करने की जर्नी या फिर अपने अपने महबूब को कुछ लिखने लिखने की, अपनी बातें कहने की। तो अ, बड़ा बड़ा मुश्किल है मेरे ख़्याल से इन बिटवीन और हुँ, मुझे उम्मीद है कि एक वक़्त आएगा मेरी ज़िंदगी में जहाँ पे मेरा जो काम है या मैं खुद ये हर चीज़ से एक ऊपर उठ जाए कि ना वो किसी एक बॉक्स में कैद ना हो कि ये हुँ, फेमिनिस्ट आर्ट है या ये एक औरत की आर्ट है। लेकिन हाँ, मुझे हुँ। लगता है इन द एंड आप इस चीज़ को अलग नहीं कर सकते। कुछ दैट्स द भी आप थिंग। करें या हुँ, क्योंकि हमें बहुत ही आसान लगता है हर चीज़ को एक बॉक्स में डालना क्योंकि वो समझने में आसान हो जाती है। अ, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम अ, और बॉक्सेस क्रिएट करें ताकि कुछ डिफरेंट तो हो लाइक एक ही जी। सिर्फ एक ही बॉक्स ना हो उसके और भी बॉक्सेस हो या ना हो तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा बट या इट्स इन बिटवीन है भी हुँ, और नहीं भी या हुँ, जी। अम, और ये जो नगुफ्तहा में आपने थोड़ा अलग भी मटीरियल इस्तेमाल किया, आपने शायद पेपियर मैशे मैंने देखा शायद पहले आपने इस्तेमाल नहीं किया था हम्म का तो उसका निर्णय आपने कैसे लिया? उसकी वजह भी कहीं न कहीं मेरे मुझे बचपन में लेकर जाती है पेपर मैशी का इस्तेमाल मतलब कि कपड़े को एक तरीके से पेस्ट करना, उसपे कुछ हुँ, लेप लगाना। तो मुझे याद है कि जब मैं मदरसे में पढ़ती थी तो तख्ती
जो होती है, एक वुडन बोर्ड होता है, हुँ, तख्ती जिसको मैं हुँ, बहुत बनाती हूँ अपने अपने आर्टवर्क्स में। तो मुझे याद है कि एक 2 पैर मतलब एक तरीके से मेमोरी है कि मैं बैठी हूँ अपने तालाब में हवेली के और जो वुडन बोर्ड है, शाम में मदरसा होता था तो दोपहर में मैं उसको वो मुल्तानी मिट्टी के साथ उसको पेस्ट उस पे लगा रही हूँ और उसको फिर दोनों तरफ अच्छे से पेस्ट लगाना बहुत ही साफ तरीके से ताकि वो उसपे हुँ, इंक से लिखना, रोशनाई से लिखना आसान हो जाए। फिर उसको धूप में रखना, दोनों तरफ धूप दिखाना ताकि वो जल्दी से सूख जाए और फिर उसके साथ-साथ कुछ गाना, कोई पोएट्री कि तख्ती-तख्ती जल्दी से सूख जाओ। कुछ हम हुँ, बनाते थे अपने 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 हुँ, हुँ, अपने कपल्स होते थे बच्चों के कि सूरज से आप रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से हमारी तख्ती को आप सुखा दें और अगर उसपे बादल आ गए तो बादल को कहते हैं कि हट जाओ कि ये जल्दी से हमारी तख्ती सूख जाए क्योंकि अगर तख्ती साफ नहीं होगी तो आपको मौलवी साहब मारेंगे। और फिर उसके बाद जितने वक़्त तक तख्ती सूखती थी, उतने वक़्त आप रोशनाई बनाते थे, वो कुछ गोल-गोल कुछ टैबलेट्स की तरह आते थे, आप उसको हुँ, पीसते थे, फिर उसमें पानी मिला के एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ उसको तैयार करते थे इंक को और फिर जिस कलम से आप लिखते थे, एक तरीके से लकड़ी होती थी और उससे हम कलम उसको बनाते थे या तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता था उसको तख्ती को तैयार करने का जो सफ़र होता था, फिर उसके साथ गाने और जो भी चीज़ें हैं कलेक्टिवली उसी चीज़ को मैंने रिकॉल किया ड्यूरिंग हुँ, व्हेन आई वाज़ वर्किंग ऑन लफ़ज़ और हुँ, मेरी मदर ने बचपन में ऑलरेडी सिखाई थी कि किस तरीके से बनाते हैं और फिर जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गई वहाँ पे स्पेशली इसको तरीका सिखाया जाता था कि किस तरह से आपको बनाना है, काम करना है। तो उसको अच्छा, रिकॉल किया और फिर कपड़े पे लगाया। जब क्योंकि ये जो मेरा प्रोसेस है, चाहे वो कपड़े पे पेपर मैशे का लेप करना हो या या उसपे फूलों से रंग बनाना हो, तो ये जो प्रोसेस है, ये मेरे लिए बिल्कुल उस तरीके से है जैसे आप इबादत से पहले वुज़ू करते हैं। तो वुज़ू मतलब जब आप अपने आप को क्लीन करते हैं और फिर हुँ, आप इबादत के लिए जाते हैं अपने आप को खुदा को सबमिट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कपड़े के साथ अपने अपना वक़्त बिताना हुँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पार्ट ऑफ द वर्क है। मैं इसको अपने काम से अलग नहीं कर सकती मतलब जो मेरा आखिरी काम आया है, उसको मैं फर्स्ट स्टेप से अलग नहीं कर सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जो आर्ट वर्क का जो कपड़ा होता है, वो हमेशा बारिश के पानी में भीगा होता है। मुझे नहीं पता क्यों? आई मीन समवेयर आई न्यू कि क्यों लेकिन एग्ज़ैक्टली हो सकता है कि बहुत ही बेवकूफ़ाना सी बात हो क्योंकि कपड़े को बारिश के पानी में भिगोना और फिर बारिश का जो एक संदर्भ है, एक जो बारिश हुँ, का एक जो कॉन्टेक्स्ट है कि बादल कैसे पानी इकट्ठा करते हैं। एक एक प्रोसेस है हुँ, ना, एक वक़्त में वो पानी इकट्ठा हो जाता है, वो बादल बनते हैं, फिर कैसे वो बरसता है और वो पानी ही बरसता है, फिर कैसे वो मतलब एक प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं हो जाता, जो जी, चलता रहता है। और कहीं न कहीं बादलों का सफ़र करना, एक जगह से दूसरी जगह वो जाते हुँ, हैं और कहीं और जाकर बरसते हैं, कहीं और बनते हैं। तो ये बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त मतलब एक किस्सा लगता है, बहुत ही अजीब-सा, हुँ, अलग-सा और किस्से हमेशा या तो मैं खुद बनाती हूँ या वो ऑलरेडी होते हैं, दरअसल आप बनाते नहीं हो, ऑलरेडी होते हैं, बस आप उनको पिक करते हैं। तो वो मुझे हुँ, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और किस्से बुनना, मुझे लगता है जब मैं काम बनाती हूँ, तो वो एक तरीके से किस्सों का ही बुनना है। एक हुँ, किस्सा यहाँ से, किस्सा वहाँ से, तो जो प्रोसेस है वो सब एक किस्सा बनाने का प्रोसेस है। और वो फिर कैसे वो इवन वो प्रोसेस, वो पानी में भीगा हुआ कपड़ा, फिर उसको सुखाना और फिर उसके ऊपर पेपर मैशे का लेप लगाना और या फिर फूलों से रंग बनाना अपनी अम्मी के गार्डन से लेके बहुत ज़्यादा हुँ, बड़ा तो गार्डन नहीं है, लेकिन जो भी है उससे फूल लेकर उनसे रंग बनाना और उसको फिर कपड़े पे किस तरीके से वो सूख जाता है और उसके पल्प का कुछ-कुछ कोई निशान आता है। वो सब एक स्टोरी बनाते हैं, एक किस्सा हुँ, किस्सा कहते हैं एक, जो कलम है, उसकी हुँ, नोक से कैसे वो इंक जो है पेनिट्रेट होती है हुँ, कपड़े में ना कि उसकी कैसे रूह को पेनिट्रेट करी, वो चीज़ें मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं, बहुत ही एक किस्सा कहती है और वो शायद वो मुझे बहुत पसंद है, वो कहीं आपको दूर लेके जाता है
रंगों में सिर्फ़ ये नहीं कि फूलों का रंग, मैं ज़ाफ़रान का रंग, स्पेशली जब मैं काबुल में थी, वहाँ बहुत ज़ाफ़रान होता है। हुँ, ज़ाफ़रान ही ज़ाफ़रान है। तो ज़ाफ़रान का रंग है, या फिर जो अनार के रंग हैं, अनार से वो वहाँ पे काबुल में औरतें रंग बनाती थी। जहाँ तक मुझे मेरी मदर इन लॉ ने बताया। उन्होंने सिखाया मुझे रंग बनाना, कि कैसे अनार के जो जो छिलके होते हैं, उनसे आप रंग हुँ, बनाते हैं, और इस तरीके से रंग होता है कि वो कभी जाता नहीं है। और हुँ, अखरोट जो 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 सब्ज़ अखरोट होते हैं, तो उसके जो छिलके होते हैं, उससे आप रंग बनाते हैं, और कहा जाता है कि उसका रंग बिल्कुल कभी नहीं जाता है ताउम्र। तो अखरोट से रंग बनाना, तो सब चीज़ें हुँ, एक किस्से किस्से की तरह है, मतलब हर हर जी। चीज़ अपना किस्सा कहती है। हुँ। आर्टिस्ट्री के हिसाब से सोचा जाए तो आपका काम एक प्रोसेस बेस्ड रिवाज़ में बिठाया जा सकता है। जो आपने अभी पूरी प्रक्रिया भी समझाई इतने विस्तार में वो खुद जो जैसे आपने कहा एक दास्ताँ बन गई है और वो दास्ताँ हम तस्वीरों में भी देखते हैं क्योंकि ऐसा लगता है जैसे आपकी अपनी ज़िंदगी और मौसम की अपनी कहानी, वो सब चीज़ें हिस्सा है उस दास्ताँ की। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि हम सब आर्टिस्ट ही अपने हिसाब से किस्सा कहते हैं। और बस ये है कि मैं अपने किस्से में हर चीज़ को शामिल करती हूँ, शुरू से लेके आखिर तक। या जी, चाहे वो छोटा-सा सूखा हुआ फूल ही क्यों ना हो। या जी। हुँ। तो अभी अगला किस्सा आप कौन-सा सुनाने वाली हैं? अ, अभी फ़िलहाल मैं काम कर रही हूँ बाग़-ए-बाबर पर। तो बाग़-ए-बाबर जो है काबुल का एक हुँ, बहुत खूबसूरत-सा बाग है, जो कि बाबर के वक़्त में बाबर ने बनाया था अपने लिए। वो जब इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो जाती थी, तो वो जाते थे काबुल, और फिर जब हुँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्त सर्दियाँ होती थी, तो वो इंडिया वापस आते थे। बहुत खूबसूरत बना हुआ है बाग-ए-बाबर। और बाग का जो कॉन्सेप्ट है, मुझे हमेशा से बहुत ही ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि मुझे याद है बचपन में मेरी अम्मी जब हमें कहानियाँ सुनाया करती थी, आपके जो शाहनामा है उसकी कहानियाँ, हुँ, और अरेबियन नाइट्स जो है उसकी हुँ, उसकी कहानियाँ, और उसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा इंडियन फ़ोकलोर्स और पर्शियन फ़ोकलोर्स वो सुनाया हुँ, करती थी, क्योंकि उनका ताल्लुक अफ़गानी जड़ों से है। तो वो कहानियाँ हमें सुनाया करती थी, और हमेशा वो चीज़ मुझे एक दूसरी दुनिया में लेकर जाती थी। और हुँ, स्पेशली बाघ का जो डिस्क्रिप्शन होता था, कि हमेशा हर कहानी में एक बहुत ही अजीब और गरीब सा बाघ होता था, चाहे वो लाल बाघ हो हाँ, तो हमेशा बाघ बहुत ही इम्पोर्टेंट बाघ ने एक रोल प्ले किया। और स्पेशली जो मेरा घर था, मेरी हवेली के पास एक बहुत बड़ा हाजी का बाग था, और जो मेरा बचपन है उसी हाजी के बाग में खेलते हुए गुजरा है। और बाग का बहुत बाग मुझे लगता है कि बड़े बड़े इम्पोर्टेंट हैं मेरे कामों में। तो इसी तरह से हुँ, बाबर से एक रिश्ता बन जाना बहुत ही मुमकिन सी बात थी। और बाग बाबर के अलावा अगर काबुल में हम देखें, तो अफ़गानिस्तान में स्पेशली बहुत ही ज़्यादा बागों की इम्पोर्टेंस है। एक बाग है बाग-ए-ज़नाना, जहाँ पे औरतें जाती हैं, स्पेशली वो ज़नाना जो है, हुँ, जो औरतों का बाग है, जी, वहाँ पे सिर्फ़ औरतें जाती हैं। वो फिर कैसे कि काबुल की औरतें जाके बाग-ए-ज़नाना में अपनी बातें करती हैं। काबुल में इजाज़त नहीं कि आप अपने सर से दुपट्टा उतारें, भले आप किसी भी फैमिली से बिलॉन्ग करते हो, आपको दुपट्टा सर पे हुँ, लेना होता है। बट बाग-ए-बाबर में आप खुले तौर पे एक छोटी-सी जगह, बाग का एक कोना और हिस्सा, और वहाँ पे सब औरतें आपको आराम से आप देख सकते हैं, एक-दूसरे को साँस ले सकते हैं। तो फिर वहाँ पे वो हुँ, किस्सा कहती थी अपनी चीज़ें, जो भी परेशानियाँ हैं एक-दूसरे से। और किसी को अगर लड़की पसंद करनी है, तो बाग़-ए-ज़नाना में लोग हुँ, आते थे लड़कियाँ पसंद करने के लिए, औरतें ही आती थी, मतलब घर की औरतें, आदमियों की इजाज़त नहीं थी। हुँ, तो जैसे बाग़-ए-ज़नाना और आपका बाग़-ए-बाबर, बाग़-ए-चिल्लसतून। तो अभी फ़िलहाल मैं बाग पर काम कर रही हूँ, फ़िलहाल बाग़-ए-बाबर पर, तो अगला किस्सा बाग़-ए-बाबर है। अच्छा। आई थिंक जनरली साउथ एशिया में उसकी एक इम्पोर्टेंस है। इनफैक्ट पिछले एपिसोड में मैं काठमांडू ट्रिएनाले के क्यूरेटर से बात कर रही थी, तो वो भी बात कर रहे थे गार्डन फॉर्मेट के बारे में, किस तरीके से उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है ट्रिएनाले में। तो आई थिंक जो आप सब अभी आपने बताया बाघ की अहमियत है हमारे कल्चर में बहुत और हमारे शहरों में उसका एक वो काफ़ी केंद्रीय फीचर रहता है रहा है और अभी भी कई शहरों में है। दिल्ली में तो इतने बाग हैं।
बिल्कुल। भले वो अब डीडीए के अंडर आते हो लेकिन वो जो एक इमेजिनेशन है गार्डन की वो तो काफ़ी पुरानी है, कई सैकड़ों साल बिल्कुल, पुरानी। तो और बिल्कुल, वो एक पब्लिक स्फीयर में जैसे आपने कहा यह काबुल में जो औरतों के लिए एक स्पेस है, जहाँ वो अपने एक-दूसरे के साथ एक किस्म की सामाजिक और कुछ हद तक राजनीतिक ब बंधन भी बना बिल्कुल, पाती हैं। बिल्कुल, तो खुले में साँस लेना, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे काबुल हो, चाहे नजीबाबाद हो, देहरादून हो, तो वो एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है एक गार्डन का और उसका इसीलिए शायद हमेशा लिंक रहा भी है सियासत के साथ भी और लोगों की ज़िंदगी में जिस तरीके से वो उसका एक फंक्शन रोल प्ले किया बिल्कुल। है। बहुत शुक्रिया आपका अर्शी मुझे आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। थैंक यू कामायनी, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि इतना वक़्त हो गया। आई वाज़ थिंकिंग लाइक 25 मिनट्स इज़ गोइंग टू बी मोर देन इनफ। यू नो व्हाट आई एम गोइंग लाइक क्या मैं बात करूँगी, बट ओह माय गॉड इट्स 1 घंटा हो गया, बिल्कुल भी पता नहीं चला आपसे बात करते हुए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, मैं बहुत आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे पास ज़्यादा अल्फ़ाज़ नहीं है कहने के लिए, लेकिन थैंक यू फॉर दिस प्लेटफ़ॉर्म या जब आप नजीबाबाद अगली बार आएँगी तो आप और मैं एआईआर के स्टेशन जाके हुड़दंग मचाएँगे। बिल्कुल पब्लिक कामायनी, के लिए। बिल्कुल आप आएँ नजीबाबाद या बिल्कुल आप आएँ या बहुत शुक्रिया अर्शी। Thank you. थैंक यू सो मच कामायनी या Thank you for tuning in to this Art Alap with Arshi Irshad Ahmad Zaid. Her solo exhibition, Naguftaha Ehawa, is on view at the Mumbai Gallery, Chatterjee and Lal, till the 27th of April. It is also viewable online on the In Touch platform. The link is in the episode show notes. If you enjoyed Art Alap, please like and share the episode over social media. For more information and updates, you can follow us on Instagram at art.alap and on Twitter at RTALAAP.